Is the screen visible to you guys? Somebody please, Sujit Sheel. Somebody please confirm whether the audio and video is visible to you. Somebody please confirm whether the audio video is visible to you. Gia is saying visible. Okay. Is the audio running perfectly? ऑडियो ठीक है Yes, आपको पेन नजर आ रहा है डू यू सी माई राइटिंग yes, ma'am. ओके shall we begin अच्छा people are still coming up still joining audio audible and visible okay thank you Sujit thank you for the confirmation I have also shared the link of the published article. You can have a look at it. You can have it open into your devices. How many of you have already read it? 10 मिनट हो गया लगभग हमने इसको पब्लिश किया हुआ. Could you read it? नहीं तो meanwhile we are waiting for others to join in. एक नजर डालिए पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिए. Go through it once. Shall we begin, guys? Many of you were not there for the polity lectures, so I just want to be sorry for not letting this time off or the Sunday evening off for your friends and family. I thought I would give you this evening off with your friends and family, but और इसीलिए हमने political lectures दिन में करवा लिए, but I had forgotten by the afternoon IST कि आज आपको इसका discussion भी देना है ऐसे का. I'm so sorry for that, guys. But we shall try to finish this as soon as possible, like in about 45 minutes or so. ठीक है? Shall we now begin? Shall we begin now? Yes, ma'am. Okay. Okay. So the topic was visionaries of today are often misunderstood by the pragmatist of the present. इस टॉपिक से आप लोग क्या समझे हैं? Can someone tell me? Quick, quick, quick.
कोई गाइस आप लोग हमारी तरफ से अनम्यूटेड है, अपने आप को फटाफट अनम्यूट कीजिए और बोलना स्टार्ट करें प्लीज. इफ यू वुड नॉट पार्टिसिपेट आपको चीजें बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ आएंगी. आप जितना ज्यादा पार्टिसिपेटिव होंगे आपको चीजें उतनी ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगी. यस, हु इज इट? गो अहेड. बताइए क्या समझ में आया है. व्हाट इज द डिमांड ऑफ द टॉपिक. व्हाट इज इट आस्किंग यू अबाउट. टेल मी पीपल. बोलो यार. मनीषा. Ma'am, हाँ. हु इज दैट. ma'am, the leaders of the visionaries, for the actual thought or that the lead what they actually thought, it's actually misinterpreted or mm, misunderstood by the pragma, pragmatic you leaders, you are as it simply said. you are simply repeating the statement. आप ये बताइए आप इससे समझे क्या है. टॉपिक पूछना क्या चाह रहा है इन योर ओन मदर टंग. हम थोड़ा बहुत बंगाली भी समझ लेते हैं. यू कैन स्पीक. जो आपको समझ आया वो बताइए. हिंदी में बात कर सकते हैं. स्पेनिश, आई नो स्पेनिश वेरी वेल. जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल है. बस हमको जानना है आपकी समझ कहाँ तक पहुंची है. टेल मी गाइस. कोई भी बोलिए. सुशांतो, यू वांट टू ट्राई. Yes, ma'am. हाँ. टेल मी सुशांतो. Actually, ma'am, the way the thought process, थॉट प्रोसेस. थॉट प्रोसेस ऑफ विजनरीज एंड ऑफ प्रैग्मेटिस्ट. इसके बारे में कुछ are तो बात completely हुई. completely opposite to each other, ma'am. ओके. ये Uh, ऐसे बोल रहा है कि ये they're अपोजिट है. uh, ओके. एग्जैक्टली. opposite to like a spectrum. एग्जैक्टली. यू टेंड टू गॉट द डिमांड. और किसी को कुछ समझ आया है. Ma'am, visionaries are like they are believing imaginations. In the other hand, pragmatists are believe in action. हाँ, ये आपने यहाँ पे पढ़ लिया है. एंड दैट इज व्हाट यू आर रिपीटिंग. इज दैट सो. हाँ. मनीषा. Ma'am, No ma'am, मैंने जब लिखा था ऐसे तब मुझे समझ में ओके. आया था. ठीक है, कोई बात नहीं. आई विल टेक दैट. ma'am, visionaries are those which have high aspirations and ambitions to settle their company to a high or to reach their to a high destination or ठीक है. high aspirations. Whereas हाँ. uh, pragmatic are the one who have gathered their experience from their realistic or practical views, or they had gathered more practical knowledge. ओके. दिस इज व्हाट यू आर Short term सेइंग. versus long term. ठीक है. ठीक है. लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म. ओके. व्हाट एल्स. Creativity and practicality. ठीक है. You are kind Because of. visionary leaders are mainly goes for they try to bring innovation, like a visionary business leader or anyone, they try to bring innovation in their products or ठीक bring है. something. Whereas pragmatists are the one who um, try to push their employees to achieve their goal and try to understand where where the problem lies and try to figure out those problems प्रॉब्लम सॉल्वर्स. and to address those problems. ठीक है. So, गॉट यू. आप भी मनीषा के भाई लग रहे हैं हमको. बट ठीक है. नो वरीज. क्योंकि चीजें ऑब्वियस सी बात है. अगर आपकी और हमारी समझ मिल रही है तो वर्ड्स भी मिलेंगे तो आइडियाज भी मिलेंगे. राइट. बट
अभी तक आप लोग जो भी बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ दिस वर्सेस विजनरीज वर्सेस प्रैग्मेटिस्ट, है ना? आप लोगों ने इस इन दोनों के बीच में एक ऑपोजिशन इस्टेब्लिश करने को ट्राई किया है अभी तक, इज दैट सो? Yes, ma'am. है ना? तो दिस इज ओनली वन डायमेंशन ऑफ योर essay. This is not what the essay is asking per se. It is only one of the dimensions of what it is asking. Got it? I am very happy कि at least आप demand को पकड़ चुके हैं only with one single essay अभी तक, and you could reach to at least one of the dimensions very perfectly. And Jia is saying they have a differences of opinion. Ma'am, हाँ. can I be little honest? Mhm. When you posted it first time, I Hmm. could not understand anything, ma'am. But you explained it in the comment section, and I saw it, and I got little bit sense out of. I could make it. Okay. Okay, no problem. I understand. I also I am very glad about this fact that whatever I am talking, I'm making at least a little sense to you guys. है ना? ठीक है. Definitely, ma'am. Okay. Now let me start talking. हम इसको हमने कैसे लिखा है ये आपको बताएंगे. This is not the only way to write an essay. ठीक है? आप लोगों के अपने अलग अलग वेज हो सकते हैं. I'll just try to show you my way of writing. ठीक है? सबसे पहले तो कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपके ऐसे में हमारे ऐसे में सेम होनी चाहिए, which are recommended कि इसी तरह से आप लोग ऐसे लिखें. फॉर एग्जाम्पल, कुछ डायमेंशंस होने चाहिए आपके ऐसे में सच दैट हमारे पास यहाँ पे एक डायमेंशन है, दो डायमेंशन है, तीसरा डायमेंशन है, एंड देन आई वुड गो ऑन टू कंक्लूड माई सेल्फ. ठीक है? नाउ जनरली स्पीकिंग आपके ऐसे में 4 to 7 dimensions होने चाहिए, including an introduction and a conclusion. ठीक है? 4 to 7 dimensions. 7 से ऊपर आपके dimensions ना जाए तो better है. Generally you might have heard somebody saying कि जितने ज्यादा dimensions हो उतना ज्यादा अच्छा. For example, take me as an example. I would myself say कि जितना ज्यादा dimensions हो उतना अच्छा. ठीक है? But यहाँ पे जब हम ये बात बोल रहे हैं कि जितने ज्यादा dimensions हो उतना अच्छा, और जब हम ये बात को अपने आप को ही काउंटर कर रहे हैं ये कह के कि 7 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो what do I mean? I mean कि आप अपने जो बहुत सारे वाले dimensions है ना उसको एक में कहीं तो कंपाइल करने का कोशिश करें. ठीक है? Now for the previous essay I had ample amount of dimensions opening up. हाँ कि ना? Yes, हाँ ma'am. मैम. ऐसा क्यों कि अभी सिर्फ 3 dimensions आपको दिख रहे हैं और उस वाले ऐसे में बहुत ज्यादा dimensions दिख रहे थे? They were not actually dimensions per se. Dimensions in itself. Per se का मतलब है in itself. क्या होते हैं dimensions? आपको किसी चीज के बारे में जब आर्ग्यूमेंट देना होता है, अलग अलग प्रकार के आर्ग्यूमेंट. प्रकार आप समझते हैं? डिफरेंट टाइप्स. प्रकार is types. These types, when they become different, it becomes one of your dimension.
ठीक है? And when you want to talk similar things, but you have various perspectives towards it. Perspective 1, perspective 2, ये dimension नहीं है, it just looks similar. वो dimension 1 का ही हिस्सा होते हैं. So you can always combine these perspectives under this particular एक ही dimension. ठीक है? For example, now विजनरीज वर्सेस प्रैग्मेटिस्ट्स, ये हमने एक डायमेंशन खोला. अगर हमारे पास इनफ कंटेंट नहीं है लिखने के लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको एक डायमेंशन बनाएंगे और हम इसको दूसरा डायमेंशन बना लेंगे और फिर हम केवल इन्हीं के ऊपर चर्चाएं करते चलेंगे. लेकिन यहाँ पे क्योंकि आई हैड इनफ ऑफ कंटेंट, क्योंकि आई हैड इनफ ऑफ आइडियाज, हमने क्या किया, अपनी चीजों को विजनरीज वर्सेस प्रैग्मेटिस्ट में डाल के इनके बीच का एक क्लैश बता दिया. इनमें जो क्लैश है, ये जो वर्सेस है, ये किस चीज का है, ये पर्सपेक्टिव का क्लैश है. ऐसा करके हमने ये एक ही डायमेंशन बता दिया. ठीक है? गॉट इट? पर्सपेक्टिव्स में और डिमेंशन में अंतर समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Now, let us move ahead to read the essay and make a sense out of it. We don't see things as they are. We see them as we are. हमने क्यों यहाँ पे थिंग्स को सी करने का और जैसे वो है या जैसे हम है, ये बात हमने क्यों की? Because I wanted to open a dimension related to individual perspectives to look at things. We don't see things as they are, we see them as we are. जैसे हम है वैसा हम चीजों को देखते हैं, ना कि जैसी चीज है. राइट? हम लकड़ी को लकड़ी की तरह नहीं देखते, वुड की तरह नहीं देखते. कोई उसको फर्नीचर की तरह देखता है, कोई उसको पेंसिल की तरह देखता है ना? जिसका जैसा दिमाग, जिसका जैसा पर्सपेक्टिव, वो सेम लकड़ी अपने अपने अलग अलग रूपों को धारण कर रही है. राइट? नाउ there are different ways to start your introduction, your essay. You can start it by quote, by an anecdote, a poem, etc. ठीक है? Taking a quote is always preferable. I am not saying you do not go by these means, लेकिन I am saying a quote because you have to reach the demand of your essay ASAP. जितना जल्दी हो सके. आप चाहे एनेक्डोट यूज कर लो, एनेक्डोट यूज करोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा और इवैल्यूएटर को ये समझने में, ये जानने में शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि भाई कहना क्या चाहते हो, है ना? Because he would be interested more into finding कि आपको डिमांड ऑफ द ऐसे समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है. और आपको डिमांड समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये कैसे उसको पता चलेगा? जब आप उस डिमांड पे पहुंचोगे और उसके बारे में बात करने लगोगे. राइट? इसलिए कोट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट ऑफ, ताकि वो ये समझ जाए कि आप समझ चुके हो कि वो क्या समझना चाहता है. हमारी बात समझ आ रही है?
समझ समझ के समझ को समझो, क्योंकि समझना ही एक समझ है। इस समझ को जो ना समझ सके वो मेरी समझ में ना समझ है। अभी टेल मी, आप लोग समझदार है या ना समझ है? आपको चीजें समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? हाँ मैम। ठीक है, हाँ। तो I started off with a quote. And then I went on to explain it. This profound observation attributed to Anais Nin. अगर नाम पता हो ठीक है, नहीं नाम पता हो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हैं। Encapsulates, हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि भाई आपने जो पूछा है हमको वो समझ आ गया है, और ये जो कोट हमने यहाँ पे यूज किया है इसके थ्रू हम ये दर्शाना चाह रहे थे कि हमारी समझ क्या है इस टॉपिक को लेकर के। That the divergent lens through which individuals perceive the world, ये अलग अलग होता है। ये हम समझ गए हैं कि एक लेंस है विजनरी का, एक लेंस है प्रैग्मेटिस्ट का। ये जो डाइवर्जेंट लेंस है हमको पता है इंडिविजुअल कैसे इसको परसीव करता है वर्ल्ड को, ये हमको समझ में आ गया है कि आपका डिमांड ये है। एंड इट रिफ्लेक्ट्स द एसेंस ऑफ परसेप्शन। हो गया, हम पहुंच गए उसकी डिमांड पे। उसको यही देखना था कि हमको जो पूछा है वो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। एज सुशांतो सेड कि इट इज एन ऑपोजिशन, ये क्लैश दर्शा रहा है। ऑपोजिशन किस बात का? परसेप्शन का। ऑपोजिशन बोलने से अच्छा हम इसको बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या पूछा है। ऑपोजिशन ऑफ पर्सपेक्टिव्स, दैट इज नोन एज परसेप्शन। हम पहुंच गए, हमने बता दिया उसको कि हमको समझ में आ गया आपको जो पूछना था। ठीक है, देन मूविंग अहेड, visionaries versus pragmatists, a clash of perspectives. Visionaries, driven by a perspective shaped by imagination and far-reaching insight, often find themselves at odds with the pragmatists. इन दोनों में लड़ाई है, झगड़ा है, वर्सेस है, हम देख रहे हैं, क्लैश है, हमको पता है। क्यों है? क्योंकि विजनरीज जो है ये इमेजिनेशन से शेप्ड होता है इनका पर्सपेक्टिव, और ये जो प्रैग्मेटिस्ट है they focus on the constraints of the present। भाई अभी की बात करो, imagination का नहीं, अभी का। तो throughout history we see that there is a tension between visionary thought and pragmatic action, and that is the very thing that has shaped the course of progress. The pragmatist, grounded in the realities of the current world, may reject ideas that seem impractical or out of reach. Yet, it is the visionary who can see beyond the limitations of the present and towards the potential of the future. वही बात है? Yes? Then the visionary with their gaze fixed on the horizon. ये बड़ा एक पोएटिक लैंग्वेज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? एक प्रकार का पोएटिक लैंग्वेज यहाँ पे आ रहा है। Do you see this poetic language that I am talking of? What is this poetic language that I am talking of? Gaze fixed on the horizon. They often see beyond the constraints of the present. They are the dreamers, innovators, and the catalysts of change. Their ideas may seem radical or impractical to the pragmatist, who prioritizes the here and now, present. है ना? However, it is precisely these visionary perspectives that have propelled humanity forward, from the invention of the wheel to the development of AI. जो चीज हमने ऊपर बोली उसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। The pragmatist, on the other hand, is grounded in reality. They are problem solvers.
the administrators, maintainers of status quo, and their focus is on efficiency, effectiveness, and tangible outcomes. ठीक है? While this pragmatic approach is essential for ensuring stability and progress, ठीक है भाई, pragmatism अच्छी बात है, वो लोग ऐसे ऐसे करते हैं, कर सकते हैं, ये हमने बता दिया, लेकिन इसमें भी तो कुछ limitation होता होगा ना. What is that limitation? So that limitation is that it stifle innovation. Innovation का गला घोट देते हैं and hinder visionary thinking. Visionary thinking को perpetuate नहीं होने देते. By examining history, philosophy and culture, it becomes clear that those who dare to dream and challenge the status quo are often the ones who transform societies. Now, can anyone tell me where does my introduction lie and where is the thesis here? पिछले ऐसे में हमने आपको बताया था थीसिस एंड इंट्रोडक्शन क्या होता है. कौन बताएगा हमको कि यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन कहाँ से कहाँ तक है एंड थीसिस कहाँ से कहाँ तक बनता है? कौन बताएगा? Yes guys, tell me. कौन बताएगा थीसिस क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है? मनीषा, अन्वेषा, what is his name? Saurav, Hustler, Sushanto. Can anyone tell me? Jia, Nabayan, Rahul, Sujit, Devjit. You too can participate. आप लोगों को मना थोड़ी किया गया है. Ma'am, throughout history, it starts from that throughout history, the tension between. Okay, यहाँ से. From here, thesis began, I think. Okay. You think this is the thesis? Ma'am, it's my perception. ठीक है. You think ये throughout history से यहाँ तक, future तक या कहाँ तक? सुशांतो? Okay, ma'am. Throughout history से कहाँ तक है thesis बताइए? Ma'am, up to future. यहाँ तक. Okay. What about others? What do they think? और सुशांतो introduction बताइए कहाँ से कहाँ तक है? Ma'am, introduction, first two lines. बस ये? बस इतना? I think so. नहीं. You are getting it wrong. देखो, पहले समझो कि जानेंगे पहचानेंगे कैसे, तब जाके आप खुद भी लिख पाएंगे, है ना? सी, ऐसा नहीं होता है कि पहला पैराग्राफ है तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है. इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि टॉपिक के पूरे के अंदर में जो पूछा गया है उसको बताने के लिए आप एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं, एक भूमिका बांध रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसपे आप अपना पूरा ऐसे बैठा पाए. दैट इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन. ठीक है? नाउ यहां पे हमने ये बता दिया कि आपने जो पूछा है वो इससे संबंधित है और इसका मीनिंग ये है. उसको ये पता चल गया कि हमको जो
पूरा ऐसे में हम बात करने वाले हैं, वो हम इसके बारे में बात करने वाले, ये इसको पता चल गया। दिस इज माई हुक, ठीक है। हियर हमने विजनरी एंड प्रैग्मेटिस्ट दोनों को कंपेयर कर लिया, क्योंकि यही कंपैरिजन तो पूछा है। दिस मिसअंडरस्टूड बाय दिस, ये कंपैरिजन तो पूछा है ना। एक जगह पे आप बोलोगे हाँ मिसअंडरस्टूड, एक जगह आप बोलोगे नहीं नहीं मिसअंडरस्टूड नहीं, एक जगह आप बोलोगे ये ज्यादा होशियार है ना, आप एक जगह बोलोगे नहीं नहीं ये ज्यादा अच्छा, एक जगह आप बोलोगे ये तो बुद्धू ही है, एक जगह आप बोलोगे अरे ये पागल है कि नहीं। तो यू हैव टू कंपेयर, पूरा ऐसे आपका इसी बात पे कि ये ज्यादा होशियार है कि ये ज्यादा होशियार है, ये ज्यादा बेटर है कि ये ज्यादा बेटर है, तो आपने इसको कंपेयर कर लिया, बिकम्स योर इंट्रो, ठीक है। और ये कंपैरिजन हमारा चलता है यहां तक। I'm saying that the visionaries are dreamers, innovators, catalysts, and the pragmatists are problem solvers, administrator, maintainers of status quo. I am saying that visionary की वजह से humanity आगे बढ़ती है and pragmatist की वजह से efficiency, effectiveness आता है। ये हमारा यहां से यहां तक चल रहा है अभी कंपैरिजन, and this becomes my introduction, ठीक है। Now, while this pragmatic approach is essential, it also stifles innovation. ठीक है, अच्छा है, बट ये भी इसमें दिक्कत है। तो जब हम हिस्ट्री को खंगालते हैं, फिलॉसफी को पढ़ते हैं, कल्चर को देखते हैं, तो ये क्लियर होता है कि वो जो ड्रीम करने को डेयर कर सकते हैं, जो हु कैन डेयर टू ड्रीम, जो बड़ा सोच सकते हैं, जो स्टेटस को चैलेंज कर सकते हैं, दे ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज। दिस इज माय ओन ओपिनियन and this is giving the thesis statement to the evaluator. थीसिस क्या होता है, हमने पहले भी बताया था। थीसिस साइंस में थीसिस लिखते हैं हम लोग, थीसिस लिखा जाते हैं, उसमें यू हैव अ हाइपोथेसिस। एक थीसिस होता है, मतलब थीसिस बनता कैसे है, देयर इज अ हाइपोथेसिस, फिर यू हैव टू check it for its verifiability, for its applicability. आपने बस मान लिया कि सारी औरतें, फीमेल्स बुरी ड्राइवर होती है, दे आर बैड ड्राइवर्स, ये आपका हाइपोथेसिस है, ये आपने मान लिया है। नाउ यू वुड गो आउट टू वेरीफाई योर हाइपोथेसिस, क्या ये सच है, ये आप जानोगे, and then you would come out with a thesis, ठीक है। So it is like hypothesis and thesis gives rise to synthesis, इन दोनों का combination, and this exactly is the combination that your essay is checking, कि आप दोनों प्रकार की व्यू रख सकते हैं कि नहीं, हाइपोथेसिस एंड थीसिस, आप दोनों चीजों को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, ये एक ऐसे दिख रहा होता है। सो व्हेन यू गिव अ थीसिस इन द बिगिनिंग ऑफ योर एसे, यहाँ पे हमने बोल दिया कि वही लोग जो स्टेटस को चैलेंज करते हैं एंड हु डेयर टू ड्रीम, वही ट्रांसफॉर्म करते हैं। भाई
मतलब हमने ये बोल दिया कि विजनरी बहुत होशियार होते हैं हमारे हिसाब से, विजनरी को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, प्रैग्मेटिस्ट 0 आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, हमने थीसिस में ये बोल दिया। अगर तो हमको कंक्लूड करते समय ये बताना पड़ेगा कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। हमको अपने ऐसे में ये बताना पड़ेगा कि उनका इंटरप्ले चलता है। यू नीड टू हैव अ बैलेंस बिटवीन बोथ, तब ये होगा आपका सिंथेसिस। क्योंकि आपने यहाँ पे थीसिस दे दिया and then you would go on to counter your thesis so as to get a holistic idea of the entire essay. समझा? समझा guys? I need to check again and again इस विंडो पे आकर के कि whether you people are there, you people are sleeping, Yes, ma'am. you I'm people, speaking. हे भगवान। ओके, तो थीसिस क्या होता है अभी समझ में आ गया होगा। दिस इज माय थीसिस एंड दिस वाज द हुक। हम इवैल्यूएटर को यहाँ पे बांधना चाह रहे थे। हुक हमने बताया ना, बोट पे, शिप पे होता है, जिसको बीच पे फेंक के बोट को पकड़ के रखा जाता है, बांध के रखा जाता है, ताकि बोट पानी के बहाव से बह ना जाए, समुद्र में चली ना जाए, है ना। दिस इज हुक। ये एक बढ़िया सा कोट दे दो उसको और बता दो कि हम समझ गए हैं, यहाँ पे आपने ये पूछा है, उसको इंटरेस्ट आ जाएगा कि अच्छा अच्छा हाँ पता है, अब मेरे को पढ़ना है। नहीं तो अगर यहाँ पे आप उसको बांध नहीं पाए इंट्रोडक्शन में, हुक में, थीसिस में, तो वो समझ जाएगा यार बकवास है, फालतू टाइम वेस्ट होना है, मेरे को पढ़ना नहीं है इसका आंसर, एंड यू विल लूज इंटरेस्ट इनटू योर आंसर, इनटू योर एसे। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चले। नाउ मिसअंडरस्टैंडिंग की बात हुई थी टॉपिक में, हमने उसी वर्ड को यूज किया है जस्ट टू गिव द इवैल्यूएटर द सेंस कि आपने जो पूछा है हम उसी पे बात कर रहे हैं, बट हमने उसको अगेन एक बहुत ही पोएटिक वे में फ्रेम कर दिया है। द मिसअंडरस्टूड माइंड्स ऑफ टुडे बिकम द ट्रेल ब्लेजर्स ऑफ टुमारो। ट्रेल ब्लेजर क्या होता है? ये ट्रेल होता है, रास्ता होता है जिसको, और ब्लेजर मतलब उसको लाइट दिखाने वाले, दोज हु एनलाइटन, दोज हु लाइटन अप योर पाथ, जिसको बोलते हैं हिंदी में पथ प्रदर्शक, जो आपको रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो द मिसअंडरस्टूड माइंड्स ऑफ टुडे बिकम द ट्रेल ब्लेजर्स ऑफ टुमारो। आज अगर जिसको आप समझ रहे हैं कि बेकार है, मतलब आप उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, कल को वही बनेगा पथ प्रदर्शक, ट्रेल ब्लेजर, योर गाइड, आपको रास्ता दिखाने वाला। यस, एंड देन आई वेंट ऑन टू टेक अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कलाम, स्टीव जॉब्स, वैन गॉग, एंड देन ये एक चिल्ड्रन स्टोरी है, महाभारत से एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है। तो 1 2 3 4 5 examples is what I have quoted here, और इन 5 examples Ma'am, को, हाँ ma'am, as you said, first of all, in the thesis part, we try to display or we try to figure out that visionaries are in the right direction, whereas pragmatists means
we won't support the pragmatic view, or as you said. Mm, but in conclusion part, we have to keep a balance between both. We try to figure out that there should be a balance should be established, that हाँ, both तो वो pragmatic and yes, तो uh, what's your question? visionary views have a role. So I mean to say, can we boldly say that pragmatists don't have any role in the society, or as you told? See, you can take an opinion. You can take a stand when it comes to essay writing. ठीक है? Okay, ma'am. लेकिन अगर कहीं पे बहुत ही रैडिकल आइडिया की बात आती है, तब आप एक रैडिकल स्टैंड नहीं ले सकते हैं। और थ्रू आउट योर ऐसे आप एक रेडिकल स्टैंड नहीं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहिए। इट विल गिव यू नेगेटिव मार्क्स। बट हियर व्हाट डिड आई डू और व्हाट एम आई सजेस्टिंग यू टू डू? जब आप एक अपना क्योंकि देखो ऐसे जो होता है, इट इज टू चेक whether you hold an opinion or not. आपकी अपनी कोई राय है क्या? आप अपने दिमाग से कुछ सोच सकते हैं, या आप एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्टर है? आपको बस फैक्ट्स 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 पता है, बाकी आपका अपना ओपिनियन कुछ नहीं है, ऐसा है क्या? तो अगर ऐसा है तो यू आर अनफिट फॉर द सर्विस, है ना? इसीलिए ऐसे पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया है एग्जामिनेशन में, to check your opinion, to have a stand regarding things. But you cannot have a radical stand. अगर आपका स्टैंड रेडिकल होगा तो अगेन दैट मेक्स यू अनफिट फॉर द सर्विस। रेडिकल स्टैंड नहीं लेना है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इफ आई हैव एन ओपिनियन, हमने इसको शुरुआत में यहाँ पे थोड़ा सा 2 लाइन में बता दिया कि हमको लगता है कि ये विजनरी लोग होते हैं जो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। साथ ही में उसी लाइन में हमने ये भी बोला है कि प्रैग्मेटिक अप्रोच जो है वो स्टेबिलिटी इंश्योर करता है, प्रोग्रेस इंश्योर करता है। तो हमने प्रैग्मेटिक एकदम बेकार, ये गलत, ये ऐसा नहीं बोला है ना? सुशांत, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप शायद इस बात पे गए जब हमने ये बोला था कि प्रैग्मेटिस्ट को हमने 0 आउट ऑफ 100 मार्क्स दे दिया और विजनरी को हमने 100 आउट ऑफ 100 दे दिया। आपने शायद इस बात को पकड़ा नहीं। अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग दिस, ये 0 और ये 100 यहाँ पे इसका मतलब ये हो रहा है कि हमने यहाँ पे एक स्टैंड ले लिया है। हमारी साइड ये है कि ये लोग जो विजनरी होते हैं, those who dare to dream, those who challenge the status quo, ये लोग वो है जो ट्रांसफॉर्म करते हैं सोसाइटी को। इस स्टेटमेंट के लिए इट बिकम्स क्लियर से लगा के यहाँ तक हमने आपको ये बोला कि हमने इसको 0 दे दिया और उसको 100 दे दिया, ठीक है? बट ओवरऑल हमारे ऐसे में हमने ऐसा नहीं किया, एंड दैट वुड बी हार्मफुल टू डू। ऐसा करना भी नहीं है। और पूरे ऐसे की तो बात छोड़ो, हमने यहीं पे इस जस्ट लाइन से जस्ट पहले ही ये बता दिया कि प्रैग्मेटिक अप्रोच का ये सिग्निफिकेंस है। हम इसको भी पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से इसको हम नॉन सिग्निफिकेंट नहीं बता रहे हैं। दैट मीन्स दैट आई एम नॉट बीइंग रैडिकल while taking a stand. I am acknowledging pragmatism का अपना रोल भी, कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोग्रेस के लिए मदद करते हैं। बट ऑल्सो आप इस बात को नहीं खारिज करोगे हमारी जब हम ये कह रहे हैं कि ये इनोवेशन का गला घोटते हैं। एंड देयरफॉर आई फील कि विजनरी ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखते हैं सोसाइटी को, ठीक है? डिड यू गेट इट सुशांत? Yes, I understood very clearly. हाँ, गुड, ठीक है। तो
आगे जाके हमने ये बोला कि कलाम थे, ये भाई मिट जा, आई डोंट नो ये क्यों नहीं मिट रहा है, ठीक। समझ में आया कि कलाम जो है, he also often faced resistance for his groundbreaking ideas. His vision for India's space and defense initially met with skepticism, लेकिन बाद में significant advancements हुए डिफेंस टेक्नोलॉजी में, इंडिया स्पेस विजन में, and also I did say कि his work not only transformed India's scientific landscape but also inspired generations of young innovators, क्योंकि हमने पहले ही बोल रखा था कि इनोवेशन का काम है किसका, विजनरी का, एंड विजनरीज लाइक कलाम could do that. ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? Yes, ma'am. Then visionaries like Steve Jobs often face ridicule. He was often ridiculed. किसने उसको ridicule किया? Those who are unable to see beyond the present. Jobs' vision for personal computers and smartphones was initially dismissed as impractical. He was a visionary और pragmatist लोगों ने, मतलब जो practical, present, now and here वाली चीजों को सोचते हैं, उन लोगों ने क्या किया, उसके आइडिया को डिसमिस किया, रिडिक्यूल किया, हंसी उड़ाई. This highlights the common struggle of visionaries who are often misunderstood or dismissed due to their forward-thinking ideas. Right? In similar vein, Galileo Galilei's revolutionary scientific ideas, particularly his discovery that the Earth revolves around the Sun, were met with resistance and condemnation from those adhering to traditional religious beliefs, despite the challenges and isolation he faced. Galileo's visionary insights laid the groundwork for modern astronomy. है ना? Yes, ma'am. Again, another example, Vincent van Gogh's art. Initially misunderstood, now celebrated as groundbreaking, showing how the silence of others. I'm not able to see the screen. Now, No, ma'am. okay now? Yes. Okay. Now, Showing how the silence of others does not diminish the value of true vision. वैन गॉग के पास ट्रू विजन था, बट लोगों ने उसको तब नहीं सहराया, लेकिन जब लोगों की समझ में आया तो उसका आर्ट इज नाउ बीइंग सेलिब्रेटेड एज ग्राउंड ब्रेकिंग. व्हाट डज दिस शोज? दिस इज अ रिमाइंडर दैट visionary often dances to a rhythm that only they can hear, and it is not later and it is only later that others come to appreciate the beauty of that dance. पहले बेवकूफ है, क्या नाच रहा है, ऐसा समझ के नजरअंदाज कर दिए जाते हैं या फिर रिडिक्यूल कर दिए जाते हैं, हंसी के पात्र बनते हैं ऐसे लोग. बट कुछ समय बाद, it is only later
that others come to appreciate the beauty of their dance. वो जो नाच रहे होते हैं उसका फिर बाद में लोगों को समझ आती है चीजें. Again, what did I do here? I used a poetic language. Can you see the poetic thing here? Yes, ma'am. है ना? This you can use, which makes your essay stand out, which gives you at least a mark or two more than others. ठीक है? The story of visionaries extends even into children's literature. आप में से किसको ये Emperor's New Cloth की story पता है? In your school books, did you read this story? The Emperor's New Clothes, wherein it is the child who dares to speak the truth when everyone else is too afraid to do so. And the story echoes the idea, this story echoes the idea that those who think differently are often the first to see clearly, even when others are blind to the truth. किसको पता है ये स्टोरी? मैम मैं ये पूछ रही थी कि आपने जैसे ये कोट्स वगैरह यूज किया है ना, तो हम उसको कैसे प्रिपेयर करें, मतलब अलग अलग एसेस के लिए कैसे मतलब उसको प्रिपेयर करें याद देखो करके? यार, हमारा तो ना हमारा जनरल इंटरेस्ट हमने आपको पहले बताया है राइटिंग में रहा है. तो व्हाट आई हैव दिस हैबिट, यू नो, इवन टुडे हमारा बहुत इंटरेस्ट है राइटिंग में. इसलिए इवन टुडे व्हेनेवर आई वॉच अ मूवी और इवन इन द सिनेमा हॉल्स व्हेन आई गो टू वॉच अ मूवी, हम क्या करते हैं, कोई भी डायलॉग अगर हमको पसंद आ जाए ना मूवी का, हम उसको तुरंत अपने मोबाइल में नोट कर लेते हैं. ओके कोई सीरियल अगर हम देख रहे हैं इवन एट होम ऑन लैपटॉप्स, तो हम उसको उसी जगह पे, लाइक आई हैव दिस बिग फाइल, उसमें हम नोट कर लेते हैं. एंड देन व्हाइल स्टडीइंग व्हाट डिड आई डू इज दैट आई converted the soft copy to a physical copy so that I can keep reading and revising it again and again. It is there along with the other books that I have to study. तो हमारे पास में एक इस तरह का कंपाइलेशन है. इस तरह की चीजों में हमारे को इंटरेस्ट है तो आई कैन ग्रास्प सच लैंग्वेज. कुछ शेर व शायरी हो गया, कुछ पोएटिक लैंग्वेज है, कुछ पोर्ट है. तो यू जस्ट हैव टू हैव अ कीन आई फॉर सच डिटेल्स. आप अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं, इवन इफ यू आर रीडिंग योर करंट अफेयर्स, मान लो आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं ना, डेली आप लोग पढ़ते, राइट? न्यूज़पेपर्स में आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाता है which can make your essay stand out, let alone the GS answers, because GS answers may not provide that kind of a creativity, but जब columnist editors जब article लिख रहे होते हैं तो they, I have seen kind of using this language, such proverbs, quotes, stories, from where your quotes, anecdotes and stories can come. Just have a keen eye to it, to such details. अभी आपको अगर ऐसे कैसे लिखना है इसकी थोड़ी सी भी समझ आ रही है तो हमको लगता है कि आपको ऐसे में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे इसकी नजर भी आपको आएगी. जस्ट बी इनटू द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग ऐसे और आपको इसकी नजर भी आएगी. When somebody is, you know, using a slang या फिर कुछ भी कहावत, किसी और भाषा का आपका कोई फ्रेंड है और वो आपसे बात करते करते ऐसे जनरली कुछ भी ऐसे कुछ प्रवर्ब बोल दे रहा है कि हमारे वहां पे ना, हमारे स्टेट में इस तरह का ऐसा एक प्रवर्ब है, you can instantly have that eye towards such detail और आप उसको अपने दिमाग में नोट कर लेंगे और फिर घर जाकर के आप उसको अपनी इस तरह की नोटबुक जहाँ पे आप बना रहे हैं, जहाँ पे यू आर कंपाइलिंग सच वैल्यू एडिशन मटेरियल, आप वहां पे इसको लिख सकते हैं, कंपाइल कर सकते हो, so that you can use it wherever you find it to be relevant.
ठीक है, ऑल्सो अगर आप चाहे, आपको चाहिए होगा तो आई कैन शेयर माई ओन नोट्स with you so that you can use it according to the relevancy of it. Okay? Yes, ma'am. Please share. That will be very helpful. ठीक है, बट रिलेवेंसी देख के ही उसको अप्लाई करना है। ये नहीं कि उठाया मेरे को आता है तो मैं कहीं पे भी चेप दूं, ये नहीं, इससे बचना है। ठीक है, Okay, ma'am. लेट्स नाउ मूव अहेड। हम ये पूछ रहे थे, दिस एम्परर्स न्यू क्लॉथ्स का स्टोरी किसको पता है? बताइए, कोई जिसको पता हो स्टोरी। नहीं पता है तो वैसे बोलिए कि नहीं पता। नहीं पता मैम। Shall I tell you this story? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो ये ना एक एम्परर होता है, इसको अपने नए क्लोथ्स बनवाने होते हैं। तो ये जाता है एक टेलर के पास एंड वो टेलर सोचने में पड़ जाता है कि यार इतना बड़ा एम्परर है, इसके लिए तो इन्हें बेस्ट ऑफ बेस्ट क्लोथ्स बनने चाहिए ना, ऐसे आम कुछ तो नहीं बना सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब एम्परर उसके पास दोबारा जाता है कि हो गए मेरे कपड़े बन गए, तो वो बोलता है कि द टेलर सेज कि someone wants to join this call. The tailor says कि ये वो ना ऐसे बस हाथ ऐसे उठाता है टेलर और बोलता है कि ये मैंने आपके लिए बनाया है, दिस इज लाइक इनविजिबल, इट इज एन इनविजिबल ड्रेस, इनविजिबल क्लोथ्स है, बट ये ना उन्हीं लोगों को नजर आता है जो बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं, जो बहुत पारखी नजर वाले होते हैं, जो बहुत होशियार होते हैं। ये हर किसी को नजर नहीं आता। टेलर एम्परर को ऐसे बोलता है। अभी एम्परर को लगता है अरे अगर मैं बोलूं कि मेरे को तो नजर नहीं आ रहा है तो मतलब मेरी तो इज्जत का भाजी पाला हो जाएगा, है ना। तो मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि मतलब मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, मेरे को पारखी नजर नहीं है ना। तो एम्परर बोलता है हाँ हाँ मेरे को दिखा, यस यस दिस इज एन इनविजिबल ड्रेस, आई कैन सी इट। और वो उसको पे करता है, चला जाता है। देन फॉर द इवनिंग्स पार्टी this emperor wears this clothes and keeps on telling everybody the same story कि मैंने जो पहन रखा है ना, this is an invisible cloth, एक इनविजिबल ड्रेस है, बट ये बस इनकॉम्पिटेंट लोगों को नहीं दिखाई देता, जो बहुत होशियार होते हैं, बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं, बहुत पारखी नजर वाले होते हैं, बस वो उन्हीं लोगों को दिखता है ना। एवरीबडी सेज कि हाँ हाँ मेरे को दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, मेरे को भी पता चल गया, हाँ आई कैन सी इट, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू साउंड इनकॉम्पिटेंट, foolish, है ना। बट देयर इज दिस चाइल्ड, वो चाइल्ड बोलता है कि यार मेरे को तो ये एम्परर नेकेड नजर आ रहा है, एंड thus it is said that he dared to speak the truth when everyone else was too afraid to do so. Therefore, उसने बच्चे ने डिफरेंटली देखा चीजों को, वो इस चक्कर में नहीं रहा कि बाकी सब लोग मेरे को इनकॉम्पिटेंट समझेंगे, मेरे को फुलिश समझेंगे कि मैं नहीं देख पा रहा हूं। He did not follow the herd mentality and therefore he was the first to see it clearly that the emperor was naked. समझा? जिसको ये स्टोरी पता है वो इसका सेंस लगा सकता है। नाउ अगेन गो ऑन टू रीड दिस। हाँ, who wants to say? मैम ये हमारे एक्चुअली स्कूल में एक्चुअली हम लोगों ने poems पढ़ा था ये, अभी आपने बोला तो याद आ गया। हाँ हाँ हाँ, तो सच आर द थिंग्स जो आप अपने स्कूल से भी ले आ सकते हैं, कहीं से भी, लाइक समथिंग हैपनिंग ऑन अ कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड, कुछ भी ऐसे इज सच अ थिंग कि आप अपने आप को बहता हुआ छोड़ सकते हैं यहाँ पे। जस्ट दैट यू नीड टू रेस्ट्रेन योरसेल्फ कि इतना ना बह जाओ कि बाढ़ आ जाए। तो कुछ गाइडलाइंस है जिसको आपको फॉलो करना है, बट यू कैन लेट योर थॉट्स फ्लो। ठीक है, अभी इसको एक बार दोबारा पढ़ के देखिए, ये चीज एग्जैक्टली यहाँ पर रिलेवेंट लगेगी आपको। इन द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स, ये जो स्टोरी है, इट इज द चाइल्ड हु डेयर्स टू स्पीक द ट्रुथ व्हेन एवरीवन एल्स इज टू अफ्रेड टू डू सो।
This story echoes the idea that those who think differently are often the first ones to see clearly, even when others are blind to the truth. Visionary is much like the child in this story. चैलेंज द स्टेटस को, उसको फर्क ही नहीं पड़ता था कि बाकी लोग तो सारे बोल रहे हैं कि हमको दिख रहा है, हमको दिख रहा है, तो इसलिए मैं भी बोलूं कि मेरे को भी दिख रहा है. हाँ हाँ हाँ. He went on to reveal the truth that others refused to acknowledge. है ना? And then again, another example, the fifth one came from the Bhagavad Gita, saying that Arjun torn between duty and compassion represented what? A pragmatic perspective कि भाई अभी यहाँ पे मेरे सामने, मेरे नजरों के सामने, मेरे हाथों से मैं इनका कत्ल करूं, ये मेरे अपने लोग हैं, मैं कैसे इनको मारूं? Because he was focused more upon the immediate consequences of war, while Krishna provided a visionary outlook. क्या किया था? He went beyond the present moment, transcending the present moment and offering a broader understanding of morality and purpose. और उसको बोला कि नहीं नहीं, ये pertaining to your duty, beautiful है, कर मार, because ये लोग अधर्मी हैं and we are here to establish dharma. So this is your duty. It is dutiful of you to kill all of these adharmi people, whether be they your cousins and relatives. है ना? Krishna had a visionary outlook that way. While Krishna's advice of Nishkam Karma, you guys understand Nishkam Karma? Nishkam Karma किसको पता है? यस मैम, जिसको मतलब जो काम करते टाइम हम लोग रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते. राइट. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म हेतुर्फलभू माते संगोत स्वकर्मणि. कर्म किए जाओ, फल की चिंता नहीं करो. इस चीज का एडवाइस देते वक्त कृष्णा इज सीन एज प्रैग्मेटिक. अभी हमने क्या बोला? कृष्णा प्रोवाइडेड व्हाट? अ विजनरी आउटलुक. बट व्हेन ही एडवाइसेस अर्जुन ऑफ निष्काम कर्म, तब he is seen as pragmatic. And it acknowledges the importance of visionary sages and seers who inspired humanity with their spiritual insights. So ultimately, Krishna's wisdom teaches us what? That what may seem irrational or unclear abhi can be guided by a deeper understanding of universe. What was the deeper understanding? कि अभी ये आपको अपने सगे संबंधी लग रहे होंगे, लेकिन बाद में के लिए अधर्म खत्म हो जाएगा अगर आप इनको मार दोगे, तो मारो. This is a deeper understanding. In निष्काम कर्म, what is a deeper understanding? कि अगर आप फल के बारे में सोचते रहोगे काम करते समय, अगर आप सौरभ, इज सौरभ हियर? हसलर सौरभ, इज ही हियर? Yes, ma'am. हाँ, अगर आप अभी इस वक्त ये सोचते रहोगे कि मेरे को डर लग रहा है, मेरे को नहीं आएगा लिखने को, हाउ डू आई राइट, मेरे को पता है सारा, पर मेरे को पेन ही नहीं उठता भाई, मैं नहीं लिख सकता अच्छा आंसर. अभी अगर इस तरह का डर है, अभी अगर सोच रहे हैं कि फल नहीं मिलेगा, कम मार्क्स मिलेंगे, एसपी मैम को ये अच्छा नहीं लगेगा मेरा आंसर, अगर रिजल्ट के बारे में अभी सोच रहे होंगे, तो आप अच्छा आंसर कभी लिख ही नहीं पाएंगे. यू कैन नेवर पिक योर पेन अप एंड पेन इट डाउन ऑनटू द पेपर. डीपर अंडरस्टैंडिंग क्या कह रही है यहाँ पे निष्काम करने में?
कि आप केवल फोकस्ड रहिए लिखने से। क्वेश्चन क्या पूछा है, मेरे पास क्या क्या कंटेंट है, मैं इसको कैसे स्ट्रक्चरिंग करूं, कैसे प्रेजेंटेशन करूं, मेरे को जो जो आता है मैं इसमें लिख दूं, बाद में एसपी जाने और मेरा आंसर जाने बाढ़ में जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस लिखना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एसपी क्या करेगी, लिखेगी यू हैव रिटन अ वेरी बैड आंसर, इससे ज्यादा क्या होगा? ठीक है, मैं दोबारा और लिख लूंगा। So I'll be simply focused upon writing and not the results that would come after me writing that answer. This is a deeper understanding of Nishkankaran. Yes, ma'am. तो यहाँ पे कृष्ण का प्रैग्मेटिज्म एंड विजनरी अप्रोच समझ में आया है? आ रहा है? Yes, ma'am. Then moving ahead, the experience of visionaries highlights the importance of perseverance. You have to perceive. Persevere अगर नहीं करोगे तो रिजल्ट्स एनीवेज अच्छा नहीं होगा, मार्क्स एनीवेज आपको कम मिलेंगे। यू विल हैव टू परसीवियर, मतलब मेहनत करते चलना है, पसीना बहाते चलना है, एफर्ट्स डालते चलना है। परसीवियरेंस एंड द एंड्यूरिंग वैल्यू ऑफ व्हाट? यूनिक पर्सपेक्टिव्स। यस, यही जाना हम लोगों ने। अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखे किस किस के, कृष्ण का, अर्जुन का, वैन गॉग का, स्टीव जॉब्स का, कलाम का एंड गैलीलियो का। What did they teach us? The importance of perseverance and unique perspectives. Perseverance मतलब समझ में आया ना कि स्टीव जॉब को फर्क नहीं पड़ा, लोग उसको चाहे जितना रिडिक्यूल कर रहे थे, वो अपना काम करता गया, अपना मेहनत करता गया। कलाम को फर्क नहीं पड़ा, he did face resistance, but वो अपना काम करता गया, he had a vision, और उसको फिर सार्थक होना ही पड़ा उनके विजन को। गैलीलियो का सेम, he had to face resistance and condemnation, but आखिर में एस्ट्रोनॉमी आज वहीं से शुरू होती है, राइट? तो अगर आप परसीवियरेंस की वैल्यू को समझेंगे और आपका अपना जो यूनिक पर्सपेक्टिव है उसको उसी तरह से रहने देंगे, वो स्टोरी में जैसे बच्चे का था वैसा नहीं जैसे लोगों का था। सब लोग कहने से घबरा रहे थे एंड दे हैड बीन ब्लाइंड टू द ट्रुथ, उस तरह से नहीं, बल्कि अपना खुद का यूनिक पर्सपेक्टिव। तो आप समझेंगे कि ये सारे विजनरीज को एक्सपीरियंस करना पड़ा है। ओके, नाउ द इंटरप्ले बिटवीन both of these. Visionaries like Tesla and Einstein conceive groundbreaking ideas. ये लोग लाते हैं, और pragmatists जो होते हैं like Wright brothers, they turn them into practical applications. ये आइडिया को लाने वाले और pragmatists like him उनको practically अप्लाई करने वाले। ठीक है? Philosophy exemplifies this tension with, इसी टेंशन की बात हो रही है, विजनरीज एंड प्रैग्मेटिस्ट के बीच का टेंशन कहां से आता है? फिलॉसफी में हम कहां देखते हैं? प्लेटो का आइडियलिज्म एंड एरिस्टोटल का रियलिज्म, है ना? किसी का है ऑप्शनल? फिलॉसफी किसी का ऑप्शनल है? फिलॉसफी गाइस? नो मैम। नन? कोई भी नहीं है। ओके, ठीक है। तो प्लेटो का आइडियलिज्म आपको पता होगा, आइडियलिज्म की वो बात करता है कि
कैसा होना चाहिए, एंड एरिस्टोटल बात करता है क्या है इसकी, होना चाहिए और है, इन दोनों में वर्सेस चलता है, टेंशन चलता है. इन पॉलिटिक्स विजनरीज इंस्पायर सोशल चेंज. कैसे? जो सोशल मूवमेंट्स हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में देख लो, या अभी रिसेंटली मतलब करंट में कंटेम्पररी इश्यूज देख रहे हैं, सेक्शन 377 के लिए चली थी, एंटी करप्शन चली थी सोशल मूवमेंट, मी टू सोशल मूवमेंट. कौन इंस्पायर करता है? विजनरीज. प्रैक्टिकल लोग जो होते हैं वो कभी भी सोशल चेंज को एडमायर नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर स्टेटस कोइज, क्योंकि वो आगे के नहीं देख सकते. They are concerned more about stability. Ultimately, we see that a balance is required between visionary thinking and pragmatic action, ताकि हम प्रोग्रेस कर सके, क्योंकि प्रोग्रेस के लिए जरूरी है स्टेबिलिटी भी और सोशल चेंज भी, है ना. सोशल चेंज एंड स्टेबिलिटी जब दोनों होंगे तभी प्रोग्रेस हो सकता है. इसलिए वी आर सेइंग कि वी नीड अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस. ठीक है. The spheres of visionary and pragmatist therefore are not necessarily mutually exclusive. अलग अलग नहीं है ये साथ साथ काम करते हैं, क्योंकि जब सोसाइटी इज ऑन इट्स पाथ अहेड, जिस भी तरह से सोसाइटी आगे बढ़ रही है, दिस इज प्रोग्रेशन, नॉट द डेवलपमेंट वाला प्रोग्रेस. प्रोग्रेशन इज दिस, आगे बढ़ना. जब सोसाइटी प्रोग्रेस करने आगे बढ़ रही है तो ये भी चाहिए और ये भी हो रहा होगा और ये भी. इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों एक साथ चल रहे हैं. In fact, the most successful leaders and innovators often possess a combination of both these qualities. जब हमने ऊपर सुशांतो राइट, हाँ, Yes, ma'am. जब हमने ये बोला था ऊपर कि हमारे ओपिनियन में हमको ये लगता है कि प्रैग्मेटिस्ट इतने अच्छे नहीं होते जितने विजनरी होते हैं. अब हम यहाँ पे दोबारा से उसको पूरी तरह से नेगेट करते हुए ये कहते हैं कि जो मोस्ट सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं ना, जो मोस्ट सक्सेसफुल इनोवेटर्स होते हैं ना, वो तो भाई दोनों क्वालिटीज रखते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ क्वालिटी होता है उनमें, केवल विजनरी नहीं होते वो. तो इस तरह कह के हमने अपने पहले वाले उस वाले स्टेटमेंट को जो ऊपर कहा था थीसिस में, उसको नेगेट कर दिया. और अब हम एक ऐसे पेडेस्टल पे आ गए हैं जहां पे आई कैन टेल टू द एग्जामिनर कि आई एम टेकिंग अ बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड्स माय एसे. राइट और रॉन्ग? कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. Steve Jobs, for example, was a visionary who had ये लीडर, सक्सेसफुल इनोवेटर है ना, उसके लिए हम एग्जांपल दे रहे हैं स्टीव जॉब्स का एक, एंड गांधी का हमने लिखा है कुछ, हाँ, गांधी का दूसरा. तो हम कहते हैं कि स्टीव जॉब्स जो है विजनरी था, who had a deep understanding of technology and a passion for creating products that were both beautiful and functional, creative and a deeper understanding of technology, that is knowledge. He was also a pragmatist who knew how to turn his ideas into reality and build a successful business. And the second example that I gave is of Gandhi. He was a visionary who challenged the British colonial rule in India through non-violent resistance. ऐसे समय पे जब non-violence को कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा कह के देखा जाता था. But his pragmatic approach to social change
based on the principles of truth and non-violence ultimately gave us independence. है कि नहीं? And to conclude, I would say, while visionaries inspire us with their dreams of a better future, pragmatists ensure that these dreams are grounded in reality. हवा में बातें नहीं हो रही हो, इस चीज को pragmatists ensure करते हैं. Both perspectives are essential for progress, and it is through a harmonious interplay of visionary thinking and pragmatic action that we can achieve our collective goals. By understanding and appreciating the unique contributions of both visionaries and pragmatists, we can foster a more balanced and harmonious society. ठीक है? You could Yes, choose to write any of these last two statements. ये सेम ही है. आपको बताने के लिए हमने सिमिलर पैटर्न पे रखा है. आप चाहे ये चूज कर ले लिखने के लिए, चाहे ये चूज कर ले. Okay? Any problem? Anybody facing any problem until now? No, ma'am. सारी चीजें अच्छी तरह समझ आई है. This and this ये सेम है. आप जो चाहे इसमें से चूज कर सकते हैं. I just wanted in the end to show you the framing of statements, sentences, your thoughts. Both perspectives are essential for progress, and it is through a harmonious interplay of visionary thinking and pragmatic action that we can achieve our collective goals. Or you can say, by understanding and appreciating the unique contributions of both visionaries and pragmatists, we can foster a more balanced and harmonious society. Harmonious interplay की बात हो रही है किसके बीच? विजनरी थिंकिंग एंड प्रैग्मेटिक एक्शन, मतलब विजनरीज एंड प्रैग्मेटिस्ट्स के बीच. वॉइस इज क्रैकिंग मैम. अभी ठीक है? इज इट ओके नाउ? इज इट ऑल राइट? Am I audible, guys? Not audible. Oh. Am I audible now? या हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि हमको बस ये बताना है कि both perspectives are essential for progress. Both perspectives कौन से? Harmonious interplay of visionary thinking and pragmatic action. वही हमने यहाँ पे कहा कि unique contributions of both visionary and pragmatist, we can have a balanced and harmonious society. ये collective goals की जब हम बात कर रहे हैं, it points towards the society. ठीक है? I just wanted to show कि कैसे आप अपने statements का framing कर सकते हैं. Therefore ये last statement को हमने, ये दोनों exact same बातें हैं, exact same, बस आपको बताने के लिए अलग अलग तरह से लिखी गई है. Can you see for yourself the comparison?
Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सौरभ, you have raised your hand. आप कुछ पूछना, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, वो आवाज नहीं आ रहा था ना, इसलिए ओके ओके ओके, ठीक है. तो that is it from my side for this particular essay. अगर आप लोग कुछ चाहे पूछना, बोलना, the session is now thrown open to you. मैम मुझे वो अर्जुन वाला समझ में नहीं आया, मतलब विजनरी वाला समझ में आया पर प्रैग्मेटिक वाला समझ में नहीं आया. वो चीज अर्जुन से रिलेटेड नहीं है, वो चीज कृष्ण से रिलेटेड है. सॉरी, कृष्णा से रिलेटेड. हाँ. I'll still tell you the both of these. अर्जुन जब हम बोल रहे हैं तो हमने ये बताया कि वो बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके चल रहा था. इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर के ऊपर उसका फोकस था. हमने पहले भी यहाँ पे बताया है कि प्रैग्मेटिस्ट जो है वो हियर एंड नाउ, बस प्रेजेंट की बात करते हैं. वेयर इज इट? विजनरी प्रैग्मेटिस्ट. Where did I say कि ये लोग केवल here and now अभी बस. Where is it? हाँ, this. Did I not say कि pragmatists are those who prioritize here and now? है ना? हम अपनी इसी बात को, जो हमने शुरुआत में बात की थी, हम अपनी इसी बात को यहाँ पर रीआइटरेट करते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन केवल इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस पे फोकस कर रहा था और इसीलिए प्रैग्मेटिक था, ऐसा हम कह रहे हैं यहाँ पे कि ये मेरे अपने लोग हैं, मैं इनको कैसे मारूं, ये मर जाएंगे तो फिर मेरा फैमिली आगे कैसे चलेगा, ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं नहीं मार सकता, मेरे को दुख हो रहा है. That was his pragmatism. But Krishna says कि भाई तू ना इससे प्रेजेंट मोमेंट से परे निकल के सोच के देख, तो तेरे को समझ में आएगा कि दिस वॉर इज ड्यूटीफुल. ये धर्म की स्थापना के लिए है, इसमें मोरालिटी एंड पर्पस है. तब हम कह रहे हैं कि कृष्णा जो है वो एक विजनरी आउटलुक लेकर के चल रहा है, जब वो अर्जुन को सिखा रहा है कि तेरे को करना चाहिए, तेरे को मारना चाहिए, तेरे को जाना चाहिए वर्क के लिए. ठीक है ना? एंड अगेन कृष्ण के बारे में ही आगे बात करते हुए हमने कहा कि लेकिन अभी यहाँ पे हमने क्या बोला कि कृष्ण जो है ये एक विजनरी आउटलुक लेके चल रहा है. जब अर्जुन की ये वाली स्टोरी हम बता रहे तब तुरंत हम वहीं पे बता दे रहे हैं कि अर्जुन यहाँ, सॉरी कृष्णा यहाँ पे तो विजनरी है, लेकिन जब वो निष्काम कर्म की एडवाइस दे रहा है अर्जुन को, तब वो बन जाता है प्रैग्मेटिक. कैसे? वो बोलता है प्रैक्टिकल बात क्या है अभी, नाउ एंड हियर, अभी कॉन्सिक्वेंस क्या है, बस तू वो देख. मर जाएगा क्या तू कि अगर तू आंसर राइटिंग कर लेगा? वाज द एग्जांपल दैट आई हैड टेकन. इज इट नॉट प्रैक्टिकल इनफ फॉर यू कि तू अभी इन लोगों को मार सके? सामने खड़े हुए हैं, बैटल के लिए इन्होंने खुद प्रपोज किया है, मार इनको. वेरी प्रैक्टिकल. ऑल्सो व्हेन इट टॉक्स ऑफ निष्काम कर्म, तो क्या बोलता है? फल की चिंता मत करो, कर्म पे फोकस करो. जो भी आप काम कर रहे हैं उस पे फोकस करना इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैग्मेटिक. फल के लिए जो आने वाली चीज है उसके लिए जब आप सोचते हो तो यू बिकम अ विजनरी. तो यहाँ पे कृष्ण विजनरी आउटलुक नहीं ले रहा है, विजनरी अप्रोच नहीं ले रहा है जब वो बात करता है निष्काम कर्म की. तो हमने यहाँ पे दोनों चीजें बता दी. जब कृष्ण विजनरी होता है तब वो कैसे साउंड करता है, उसकी एक स्टोरी हमने बता दी अर्जुन के साथ वाली घटना की. The incident when he tells Arjun to go for a war to kill his own family members. और हमने सेम व्यक्ति को प्रैग्मेटिक होते हुए भी दर्शा दिया.
कि जब वो निष्काम कर्म की बात करता है तो बोलता है प्रैक्टिकल क्या है भाई, कर्म करना प्रैक्टिकल है, फल क्या होगा नहीं होगा इस पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तुम्हारा वश नहीं है, इससे तुम उसके बारे में मत सोचो। काम करना तुम्हारे हाथ में है, इट इज प्रैक्टिकल इनफ, इट इज प्रैग्मेटिक इनफ, वो करो सिंपल। और ये चीज सिखाते हुए he acknowledges the importance of visionary sages and seers who went on to inspire humanity with their spiritual insights। ठीक है, तो ये जो कृष्ण की यहाँ पे कहानी है, इससे कृष्ण का जो विजडम है, इससे हमको क्या सीखने को मिलता है? इट टीचेस अस दैट अभी अगर आपको कोई चीज इररेशनल और अनक्लियर लग रही है, जैसे अर्जुन को लग रही थी कि अगर ये मेरे अपने भाई बंद है, मेरे अपने सगे संबंधी, मेरे रिलेटिव्स मर जाएंगे तो कैसे होगा, क्या होगा, इररेशनल लग रहा है मेरे को इनको मारना, अनक्लियर भविष्य नजर आ रहा है। या निष्काम कर्म के वक्त में जब वो बात करता है कि फल क्या होगा, वेदर आई पास दिस एग्जाम, वेदर आई फेल द एग्जाम, मेरे को मार्क्स कितने आएंगे, मैं अच्छा आंसर लिखूं नहीं लिखूं, कैसे मैं लिख पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मैं अच्छा लिखूंगा कि बुरा लिखूंगा, लीव इट ऑल, इट इज अनक्लियर, है ना। अभी अगर कोई चीज अनक्लियर भी लग रही है इन द मोमेंट, तो भी इट कैन बी गाइडेड बाय अ डीपर अंडरस्टैंडिंग कि मेरे लिए अभी आंसर लिखना प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है, मेरे लिए अभी मेरे सगे संबंधियों को मारना प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक है, क्योंकि आगे जाकर के जो होगा होगा, दिस इज माई ड्यूटी टुडे, वो अधर्मी लोग हैं, मेरे को उनको खत्म करना है, मेरे को अधर्म का सफाया करना है। निष्काम कर्म व्हाट, अभी मेरे को काम करना है, फल जो हो, आई विल ओनली फोकस अपॉन द वर्क दैट हैज बीन हैंडेड टू मी टुडे एंड नाउ। ठीक है, एंड इफ यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन बी गाइडेड बाय अ डीपर अंडरस्टैंडिंग कि अगर मैं लिखता हूं आंसर हर रोज, आई विल बिकम बेटर एट इट। यार क्यों नहीं होगा मेरा सिलेक्शन? जिनका हुआ उन्होंने भी तो ऐसे ही पहला आंसर कभी तो लिखा होगा, वो लोग भी तो स्ट्रगल किए होंगे, उनको भी तो डर लगा होगा कि नहीं आता, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। तो फिर जिनका सिलेक्शन हुआ उनमें भी आई विल बी द वन दैट गेट सिलेक्टेड। ये है डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ठीक है, Yes, ma'am. आई होप यू गॉट इट, Yes, ma'am. द एंटायर थिंग। पूरा ऐसे कैसे लिखना है, कैसे हमने लिखा है, कैसे आप इसको और बेहतर बना सकते हैं, कैसे आप अपनी कॉपी लिख सकते हैं, क्या आपको समझ में आया? जी आई सेइंग यस, ओके। बाकी सबको नहीं समझ आया? Yes, ma'am. समझ आ गई। ओके, It was a very crucial session. I learned a lot from this session. थैंक यू सो मच, एंड आई होप आप जो भी सीख रहे हैं उसको अप्लाई करते चले, लिखते चलो। ठीक है, सौरभ, इज इट दैट यू वांट टू से समथिंग? यू हैव रेज्ड योर हैंड सौरभ। सॉरी, मैं अनम्यूट करना भूल गया था। ओके, एक्चुअली कोई बात नहीं। हाँ बोलिए। मैं बोल रहा था, जितना मैंने अभी मतलब 2 ऐसे में आपसे मतलब सीखा, मुझे मतलब ऐसा तो अभी लगता है मतलब कोई भी ऐसे आएगा तो मैं आपने जितना लिखा उसका एटलीस्ट 20-30% लिख लूँगा। नहीं, आप लेकिन मुझे आप 125% लिखोगे, हमने जितना लिखा है उससे और बेहतर आप लिखोगे। Have that confidence into you, because I too am a human being just like you. अगर हम लिख सकते हैं, आप हमसे बेहतर कर सकते हैं, and there is always a scope of improvement into every single one of us. कोई भी हो, चाहे हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि I am like all top of it, है ना, हमारे अंदर भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो you can be the one to go beyond whatever I am today, है ना। तो just try to write, I'm sure आप लिख पाओगे। ओके मैम। ओके,
तो हमने पहले वाले ऐसे में पहले वाला ऐसे आपने देखा था ना सौरभ, वहां पे हमने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था कि WH क्वेश्चंस के थ्रू आपको कैसे जाना है, यू हैव टू अप्रोच द डायमेंशंस। आज हमने आपको डायमेंशंस को कैसे एक्सप्लोर करना है ये बता दिया, टू गो इनटू अ डीपर डेप्थ ऑफ इट। मैम मेरे को एक प्रॉब्लम जो आ रहा है, मतलब मैं तो आपने बोला कि WH क्वेश्चन से मतलब क्वेश्चन करना है और डायमेंशंस निकालना है, वो तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन जब मुझे सब हेडिंग जो आप देते हैं ना, जितना मीनिंगफुल वे में आप लिखते हैं, वैसे सब हेडिंग्स और मतलब वो फ्रेमिंग, सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं आ रहा है। सौरभ, मतलब जैसे सौरभ दो ऐसे मतलब दो ऐसे सौरभ आपको नहीं आएगा, नहीं आ सकता। वही See, I have brought an experience of more than 10 years with me. तो आप में और हमें इतना फर्क तो रहेगा यार। Understand that. Do not have unnecessary ambiguous expectations from your own self. Unrealistic expectation मत रखो। नहीं, मतलब मैं तो पूछ रहा हूँ कि इसे इम्प्रूव कैसे करूँ? Keep on writing. That is the only way to go about it. Okay. Keep on writing.